Good morning, everyone. Good morning. Yes, girls. Are you there? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Let's wait for a few more minutes. उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Meanwhile, take out page number 18.90. Question number 32. Have you solved? Speak, beta. Have you solved question number 32? Have you tried? Try here. Yes, ma'am. आया इसका आंसर? Speak, बेटा. आंसर आया इसका? अगर इसका आंसर नहीं आया बेटा, नो प्रॉब्लम. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ ओनली. मैम बताओ. आ गया था. आ गया था आंसर? यस मैम. सबका आ गया? प्रिशा, सुमायरा, वंशिका, Yes, गुनकी. ma'am. ठीक है. सुखमनी. ओके. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 33. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. हम्म. देखो क्या है. फ्रॉम द बैलेंसेस गिवन बिलो एंड द एडजस्टमेंट्स दैट फॉलो, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2015 and prepare a balance sheet on that date. So here is a trial balance. आपको यहाँ पे figures दी हुई हैं. So tell me trade creditors, what are they? Liabilities, Liability, balance sheet. balance sheet. ठीक है. Bills payable, Liabilities, liabilities. ठीक है. Journal expenses, P&L, P&L account. P&L account. Discount received. P&L account. Credit side. Then we P&L have bills account, credit side. receivables. Bills receivable, Liability. liability. Balance, Purchases, trading account, Trading account. trading account. trading account. Then we have stock on April 1, 2014. क्या कौन सा स्टॉक है Opening आपका? stock. Opening Yes, it is stock, a trading opening account. stock. Next we have cash at bank. Asset, Asset. Good. Capital. asset, asset. Capital asset है हमारा. Liabilities, Liability side. Building. asset, Asset. asset. हाँ. Then we have bank loan. 40,000. Bank loan. इस पे आपको 10% लोन निकालना Liabilities, है. 4,000. Liabilities. Liability sides. ठीक है. और इसका इंटरेस्ट कहाँ पे होगा ऐड? ओके, वो नीचे आ गया. ठीक है. परचेज रिटर्न. trading, ट्रेडिंग अकाउंट. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. P&L account. कौन सा प्रोविजन है ये? कौन सा रिजर्व है? Old provision. old Provisions है. provision. ठीक है. कैश इन. हाँ, ऑल प्रोविजन सही है बेटा. कैश इन हैंड. Asset. Asset, डिस्काउंट अलाउड. P&L. P&L Account, debit debit side. side. पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. उसके बाद आपका आता है वेजेस मैन्युफैक्चरिंग. Trading account. मैन्युफैक्चरिंग Trading कहाँ होती है? account. Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट साइड पे आ जाओ. क्रेडिट डेटर्स. Asset side. एसेट साइड. Liability. डेटर्स हमारे एसेट होते हैं बेटा. Ma'am, I thought you said creditor. नो नो, डेटर्स. लुक एट द स्क्रीन. देखो डेटर्स लिखा है वहां पे. देन कैरेज इनवर्ड. Trading. ट्रेडिंग अकाउंट Trade वेट साइड. debit. अगर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड होता है वो कहाँ लिखते हैं आप? P&L. P&L account. Debit side. P&L account, debit side. सेल्स रिटर्न. Trading account, Trading credit side. account. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सैलरीज. P&L account. पीएनएल अकाउंट. हाँ. सेल्स. Trading account, trading क्रेडिट साइड. account. हाँ. बैड डेट्स.
P&L account. P&L account. अभी कौन से बैड डेट्स हैं हमारे? The bad debts written off during the year. Rent, rates and taxes 11,200. P&L account. P&L account. Plant and machinery Asset. Asset. asset side. ठीक. Adjustments पे आ जाओ. Bad debts are estimated to be rupees 3,220. उसके बाद आपको यहाँ पे given है create reserve for bad and doubtful debts at the rate of rupees 5 at the rate of 5%. आपने debtors पे 5% जो है क्या लगाना है? Bad debts written off. Then interest in bank loan is outstanding for the full year. अब मुझे बताओ बैंक लोन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 40,000. 40,000 गिवन है. टेबल में देखो 40,000 गिवन है. इस पे आपने 10% जो है क्या लगाना है? इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स ऐड होगा. तो 40,000 का 10% Yes, ma'am. कितना होता है? 4,000. 4,000. तो ये आपका ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में. प्लस ये 4,000 आपका जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट इज depreciate furniture plant and machinery at the rate of 10%, building at the rate of 2.5%. कर लोगे ये? आपने बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है और बिल्डिंग पे 2.5% का. देन स्टॉक ऑन 31st March 2015 इज 93,840. कौन सा स्टॉक है हमारा ये? Closing stock. ठीक. क्लोजिंग स्टॉक. फॉर्मेट इज रेडी? फॉर्मेट रेडी है? चलो फिर हम लोग को बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33. जस्ट वेट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars and amount. आगे बेटा फर्स्ट आइटम Two opening stock. हाँ राइट. टू ओपनिंग स्टॉक 63,900. yes 63,900. नेक्स्ट आइटम परचेजेस. Purchases. इसमें Yes, ma'am. इनर कॉलम में 1,17,200. 200. राइट. लेस रिटर्न्स आउटवर्ड 16,200. 16,200. आउटर कॉलम 1,01,000. 1,01,000. वेरी गुड. नेक्स्ट आइटम वेजेस है. ब्रैकेट में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग. Yes. देखो टू वेजेस. अमाउंट इज 39,000. 39,940. हाँ. नेक्स्ट आइटम कैरेज इनवर्ड. To carriage. तो कैरेज इनवर्ड 3,580. yes 3,580. और कुछ आइटम आएगी डेबिट साइड पे? No, No, ma'am. आ जाओ क्रेडिट साइड पे. लिखो बाय सेल्स रिटर्न्स हैं 1,00,000. 19,400. हाँ रिटर्न्स हैं इसमें. यस. लेस रिटर्न्स इनवर्ड 28,600. 28,600. 1,69,800. 1,800. देन नेक्स्ट पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 93,840. टोटल करो बताओ कौन सी साइड ज्यादा है डेबिट की क्रेडिट? Credit side. साइड. 2,63,000 and 2,63,640. ठीक है. गुड. इसको भी क्लोज कर दो.
55,220 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जीपी कितना है आपका, लिखो टू ग्रॉस Yes, ma'am. टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कितना कितना है, 55,000 एंड 55,000. 220। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हुआ बेटा, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर करो। पहले क्या लिखे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 55,220। आ जाओ सारी आइटम्स पे। फर्स्ट आइटम अंडर Legal डेबिट साइड, charges. हाँ लिखो इधर, लीगल चार्जेस 420 टू लीगल चार्जेस अमाउंट इज 420 टू जर्नल एक्सपेंसेस 7,580. यस 7,580। नेक्स्ट आइटम क्या है, डिस्काउंट रिसीवेबल रिसीट, देखो यहाँ Discount allowed बाय डिस्काउंट रिसीव, लिखो यहाँ पे पहले बाय डिस्काउंट 5,800. 5,800। ठीक है, नेक्स्ट आइटम हमारी आ जाएगी टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड हाउ मच 8,600. 100, हाँ 8,600। नेक्स्ट आइटम सैलरीज, That is इस पे एडजस्टमेंट है नहीं है, नो 15 आउट मैम। ऑफ 15,700। 15,700. नेक्स्ट आइटम Bad Bad debts. debt. अच्छा देखिए बैड डेट्स कर लेते हैं पहले, टू बैड डेट्स, ठीक है। अच्छा कितने हैं रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, कितने रिटर्न ऑफ हुए, 2,600। 2,600. 1,600। और एडजस्टमेंट में देखो, बैड डेट्स है एस्टिमेटेड टू बी 3,220। ये आपका क्या है, न्यू प्रोविजंस, ऐड न्यू प्रोविजंस, ऐड न्यू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हाउ मच 3,000 एंड 3,220। ठीक है, कितना हो गया। 5,820। हाँ, अब हम आते हैं डेटर्स पे, बैलेंस शीट बनाओ, क्या करते हैं हम डेटर्स का प्रोविजन। ये आ गया आपके एसेट्स, ये आ गया आपके अमाउंट। ओके, डेटर्स बताओ बेटा कितने के डेटर्स, अमाउंट ऑफ डेटर्स इट इज 63,220। ठीक है, लेस लेस करो यहाँ पे, बैड डेट्स आर टू बी एस्टिमेटेड एट ₹3,220। लिखो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने हैं बेटा, 3,220। 3,220. 60,000 आ जाता है, राइट। अब इसमें क्या Yes. बोला है, नेक्स्ट लाइन पे, क्रिएट रिजर्व एंड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000। हाँ लेस 3,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, माइनस करो 3,000 आउटर कॉलम 50, 57,000. बैड डेट्स क्लियर हुए बेटा।
Yes, ma'am. बाकी बच्चों को, त्रिशा, गुनकीन, Yes, ma'am. खुशी, अम्मी, Yes, ma'am. वंशिका, सुखमणि, मानवी। ओके, आ जाओ अभी हमारे P&L अकाउंट में। कितना था यहाँ पे? रिटर्न ऑफ हुआ हमारा 3220। Plus new reserve. हाँ, ऐड न्यू प्रोविजंस या न्यू रिजर्व, न्यू प्रोविजंस बोलते हैं हम लोग। कितने के थे? 3000 के थे। कितना हो गया? 3,000. ठीक है, 8। 8,820. अब इसमें देखो ट्रायल बैलेंस में लेस Less all provision. All provision 2,200. 2200। यस, 6,620. कॉलम में कितना आ जाएगा? 6620। नेक्स्ट आइटम, टू रेंट Two रेट्स एंड rents and taxes. Rent 11,200. 11,200. यस, इट इज 11,200। नेक्स्ट आइटम, To depreciation. डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। Interest on हाँ रुको, लगाते हैं, रुको एक मिनट। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी है एक आपका, और दूसरा कौन सा एसेट है? बिल्डिंग। Building. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में आपने लगाना है 10%। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी आपकी 59,000 की है। 10%, 5,900. हाँ 10%, 900. 5,900. 5,900। नेक्स्ट आइटम आपकी आती है बिल्डिंग। Building. बिल्डिंग कितने की है आपकी? 1,000. आपके 40,000 का। 1,000. 1,000. हाँ 1,000। आउटर कॉलम 6,900. नेक्स्ट पे 6,900. देखो क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर द फुल ईयर। बैंक लोन क्या होता है मेरा? बैंक लोन इज माय Liability. तो लिखो द लाइफ Liabilities. अमाउंट। आ जाओ नीचे यहाँ पे, वी विल राइट बैंक लोन। हाउ मच इज अमाउंट गिवन? 40,000. 40,000। इस पे आपका 10% की आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग Yes, ma'am. Outstanding interest. इंटरेस्ट 40,000, 10% of 40,000। 4,000. 44,000. कॉलम 44,000। 44,000. आ जाओ अभी हमारे बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट इज 4। 4,000. अब मुझे बताओ, एनीथिंग इज लेफ्ट? No, चलो अभी ma'am. करो, टोटल बताओ। नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? Net profit. नेट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इट इज 61,020, राइट? इक्वल आ रहा है? इक्वल आ रहा है? Yes, ma'am. कुछ भी नहीं हुआ तो लिखो 61,020। ठीक है, आ जाओ अपने, हम आ जाएंगे यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में। फर्स्ट आइटम कैपिटल, नेट प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं हुआ, इक्वल है। आउटर कॉलम कितना है हमारे कैपिटल का? 1,69,200. हाँ, इट इज 1,69,200। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स, Creditors. क्रेडिटर्स अमाउंट 35,780. 780। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल, 18,700. 18,700. 18,700। और कुछ रहता है लाइबिलिटी साइड में? No, ma'am. No, ma'am. साइड पे डेटर्स हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, Cash in hand. कितना अमाउंट है? 400. 400. Cash at bank. यस, कैश एट बैंक अमाउंट है। 18,980. नेक्स्ट आइटम, Building. Closing stock. अच्छा बिल्डिंग पे आ जाते हैं पहले हम लोग। बिल्डिंग 40,000. बिल्डिंग 40,000. लेस डेप्रिसिएशन 1,000. 1,000. आउटर कॉलम 39,000. 39,000. ठीक है। नेक्स्ट आइटम कौन सी हमारी?
Plant and machinery, प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी 59,000 की। 59,000. डेप्रिसिएशन, 5,900. ऑटो कॉलम, 53,100. 53,100. देन क्लोजिंग स्टॉक, Bills receivable, हाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 93,840। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल्स, अमाउंट इज 5,360. ऐड करो, बताओ मुझे टोटल बराबर आ Two रहा है। lakhs 67,680. इक्वल है, Yes, ma'am. बैलेंस मैच कर रही है। Yes, ma'am. yes, ma'am. दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, 2,67,680, 2,67,680। क्वेश्चन नंबर 33 इज क्लियर। Yes, बोलो ma'am. बेटा। Yes, ma'am. ओके, अब आपका आता है ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, मिसलेनियस प्रॉब्लम, इतना कोई वो नहीं है, वी डोंट फोकस ऑन। Ma'am, ये वाले adjustment manager is given 10% commission on net profit हाँ ये before करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर charging. 36 है आपको। ये वैसे 12th का सिलेबस है आपका, ये आपको 12th में आएगा, तो ये करवा देती हूँ। देखो, द Ma'am, फॉलोइंग इज 11th में नहीं आएगा? 11th में मुश्किल ही होता है, लेकिन ये 12th का पैटर्न है, पार्टनरशिप का है ये, मैनेजर्स कमीशन। करवा देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर कर लो, क्वेश्चन 36। The following balances have been extracted from the books of Miss Mehak as on 31st March 2016. यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो पार्ट्स होते हैं इसमें, बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर्मूला अलग होता है, आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला अलग होता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह दिया है ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है 80,000, दैट मीन्स डेबिट क्रेडिट बैलेंस है। हमें क्या हुआ यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। देन ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000। अब क्वेश्चन में लिखा है हमने मैनेजर्स कमीशन फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन अंडर बोथ अल्टरनेटिव्स एंड आल्सो शो हाउ कमीशन पेबल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें मुझे बताओ, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट? हमारे पास नेट प्रॉफिट है, डू वी हैव नेट प्रॉफिट हियर? No, ma'am. No, ma'am. दैट मीन्स हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है 80,000, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मुझे बता दो, अब ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट Indirect. एक्सपेंसेस ये कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। देन वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Indirect. दैट मीन्स ये कहाँ आते हैं, पीएनएल अकाउंट में PNL आते हैं। में. P&L फर्स्ट account. ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट। आ जाओ, ठीक है, सॉल्यूशन 36। फर्स्ट इज योर calculation of net profit. Gross profit is given, gross profit दिया है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 80,000. जो 80,000. कितना हो गया, 80,000। अब हम लोग लेस क्या करेंगे, सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, इट इज ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट, एंड आर सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,000. 6,000 है, 6,000 और 8,000, यहाँ पे इन कॉलम में 6,000 लिखो, देन राइट 8,000। 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14,000. लेस 14,000, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 66,000. 66,000। समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर? लावण्या, सुखमणि, प्रिशा, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. साहिबा, Ma'am. वंशिका, मुमकिन, हनी, खुशी, ओके। अब हमने क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में लिखा है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो यहाँ पे, फर्स्ट इज द
मैनेजर्स कमीशन before charging such commission, before charging commission. ठीक है, जब भी बिफोर आएगा आपने क्या करना है, मैनेजर्स कमीशन कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, 66,000। 66,000. क्वेश्चन में बोला है जो मैनेजर है कंपनी का उसको कमीशन मिलेगी कितनी, 10% ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट, दैट इज बिफोर चार्जिंग, दैट मीन्स 10/100। कितना आ गया, कितना आता है, 6600। 6600. 6,600। नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहे हैं हमने मैनेजर को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दैट इज 10% ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट। ऐसे केसेस में जब आफ्टर वर्ड आता है हमने क्या करना है, टोटल कमीशन इज 66,000 इनटू कितना परसेंटेज है, 10% है, 10%. 10/100 प्लस 10, ऐसे करना है हमने। कितना हो जाएगा मैम ये, 10 क्यों? आफ्टर चार्जिंग में हम लोग 10 लगाते हैं, प्लस 10 फॉर्मूला ये। ओके मैम. बिफोर चार्जिंग में हम लोग एक्स्ट्रा 10% नहीं शो करते हैं, आफ्टर चार्जिंग में हम लोग यहाँ पे 10% शो करते हैं। 10/, ये आ जाएगा आपका 66,000 इंटू 10/110, क्लियर। 6000। यस कितना आ मैम. गया, 1000। 6000. डिफरेंस समझ आया आपको, बिफोर यस चार्जिंग मैम. में हम लोग पे कर रहे हैं 6,600, आफ्टर चार्जिंग में वी आर पेइंग ओनली 6,000। नेक्स्ट लाइन में आप इसमें क्वेश्चन में लिखा है that you have to show how this commission is payable in the balance sheet। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करना है हमें, देखो बनाओ, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाओ जरा, दोनों केसेस में बैलेंस शीट, केस 1, लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट। ओके, केस 1 में क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग है, बिफोर है, और केस 2 में वी हैव बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग। ये आपके आगे अमाउंट, अमाउंट इस लाइबिलिटी साइड, इस लाइबिलिटी साइड, केस 2, फिर आपका आ गया एसेट साइड, एसेट्स एंड योर अमाउंट। ठीक है, आ जाओ लाइबिलिटी साइड, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन ड्यू, केस 1 में क्या है, मैनेजर्स कमीशन ड्यू कितनी थी केस 1 में, मैनेजर कमीशन 6600. 6,600। देन नेक्स्ट केस में मैनेजर्स कमीशन ड्यू 6000. 6,000। क्लियर, ऐसे इफेक्ट होना यस है इसका मैम. बिफोर और आफ्टर का। तो क्वेश्चन मैम 36, क्वेश्चन 34 एंड 35 नहीं करना है? 35 इन जीएसटी, जब हम चैप्टर करेंगे जीएसटी तब करेंगे हम समरी वाले। ओके मैम. क्वेश्चन मैम क्वेश्चन 34 नंबर इज 34. इजी, हाँ वही बता रही हूँ। क्वेश्चन 34 देखो, इसमें क्या है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, देखो द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ बांके बिहारी एज ऑन 31 मार्च 2016। डेटर्स आपको दिए हैं 44,000 के, क्रेडिटर्स हैं आपको 21,000 के। एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, अबव बैलेंसेस इंक्लूड 11,000 ड्यू टू अखिलेश, 11,000 जो है वो अखिलेश को हमें देने हैं, एंड रुपीज 6,000 ड्यू टू अखिलेश, मैम ड्यू ड्यू, फ्रॉम. हाँ यस, इस ड्यू फ्रॉम अखिलेश, अंडरलाइन करो उसको, एंड ड्यू टू अखिलेश, क्या मीनिंग है इसका, ड्यू फ्रॉम एंड ड्यू टू,
ड्यू फ्रॉम मीन्स उसने हमें देने हैं, उसे हमें देने हैं। ड्यू टू मीन्स हमें इसको देने हैं, 6,000 हमें इसको हमने स्टिल उसको देने देने हैं। हैं। हाँ। फॉर द गुड्स परचेज गिव एडजस्टिंग एंट्री एंड शो ट्रीटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना होगा तो मैं कैसे शो करूंगी इसको, बताओ। मैम क्रेडिटर्स में से हम 6,000 लेस करेंगे हाँ, क्रेडिटर्स में से हम लोग 6,000 लेस करेंगे और डेब्टर्स में से हम 6,000 लेस कर लेंगे। हाँ ये देखो यहाँ पे सही बता रही बेटा आप। देखो ये मैंने बैलेंस शीट बना दी, सॉल्यूशन 34 है ये। ठीक है, बैलेंस शीट बना देती हूँ मैं यहाँ पे। वेट अ सेकेंड। यस, द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके मुझे बताओ डेटर्स कितने हैं आपके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। 44,000। ये हैं आपके 44,000 के। अब इसमें क्या लिखा है कि ₹6,000 ड्यू टू अखिलेश हमने देने हैं, तो लेस अमाउंट ड्यू टू अखिलेश, कितनी अमाउंट है। मैम 44,000 है। ओके इट इज 6,000। 6,000। आउटर कॉलम 38,000। 38,000। नेक्स्ट साइड में क्या लिखा है इसमें, वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट है। 21,000। 21,000 है आपके, लेस अमाउंट ड्यू फ्रॉम अखिलेश, it is 6,000। 1,000 again. आउटर कॉलम 15,000। जब भी बैलेंस 15,000। शीट में ऐसे सम्स आएंगे आपने ऐसे प्रोविजन दिखाना है। नेक्स्ट को पूछा इसने आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो आ जाओ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, डेट आपकी आ जाएगी 2016 मार्च 31, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, नाम नहीं गिवन है हम लोग नहीं लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट थी यहाँ पे, 6,000 है, 6,000 लिखो यहाँ पे। 6,000। 6,000 डेबिट में आ जाएगा एंड फॉर द क्रेडिट विल गेट 6,000 सेम अमाउंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट, बीइंग बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर म्यूचुअल indebtedness and settled with the least amount and settled with the least amount. Clear? Yes, ma'am. 34 is clear. Okay, now you will try next question yourself. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी लवन्या बोलो बेटा। मैम यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो उसके कोई हाँ चेंजेस वगैरह होते हैं? नहीं नहीं सुनो, क्वेश्चन 37 बोल रहे हो ना आप। यस आप मैम। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारा कुछ आ जाता है, सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाता है। देखो नीचे लिखा है वो ये नोट में, since the cost of goods sold was calculated with reference to the direct expenses, so all the expenses now given will be given the debit in the profit and loss account. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जिसको हम कॉक्स बोलते हैं, इसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस लाइक वेजेस है, फिर इसका ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी वही है। वेजेस हम लोग कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्लियर हुआ। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसमें सिर्फ आपकी एक आइटम आनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, यस मैम। बाकी क्वेश्चन ट्राई करो मैम मंडे अगर को। परचेजेस होंगे? वो तो डालना ही है, एक्चुअली Yes, ma'am. परचेसेस गिवन नहीं होता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है, देखो उसमें सब कुछ कंबाइन कंबाइन आ गया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपने।
और इसके अलावा ओके जो भी मैम। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपने वो कहाँ डालने हैं, आपने वो अपने P&L अकाउंट डेबिट साइड डालना है। क्लियर? यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो। इसमें आपको लास्ट में दिया है, मैनेजर इज गिवन 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला करवाया था, मैनेजर्स कमीशन ड्यू का। नेट प्रॉफिट पे आपने 10% लगाना है। क्लियर? यस मैम। हाँ। यस मैम। सो इन डाउट इन टुडेज क्लास, कोई डाउट है? नो मैम। सिलेबस पता ना एग्जाम का सिलेबस क्या है? यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस वेल, इफ इन डाउट टेल मी। मंडे ऑनवर्ड्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स कीप लास्ट 3 days फॉर रिवीजन। मंडे को वी शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज कौन सा यस आपका? मैम। अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम थ्योरी आती है। सो इन डाउट इन टुडेज क्लास, कोई डाउट है? नो मैम। Okay, no, ma'am. Take care of yourself. God bless you all. Please leave the class turn by turn.